Hello, my voice is clear to everyone. Yes, sir. Yes, Okay, sir. so let's start. Yesterday we have saw again we have inserted the values in table using address method. We have used commit and rollback command to save and undo the records. Then we have also seen the update command. This is used to modify the table data. मीन्स ये टेबल में अपने को कुछ भी अगर चेंज करना होगा तो वो अपडेट कमांड से हम वो कर सकते हैं. ओके. तो नेक्स्ट वी हैव आल्सो सीन delete command. In that we can delete any specific row of the table. मीन्स आप कोई भी स्पेसिफिक एक दो ऐसे रोज डिलीट कर सकते हो डिलीट कमांड से. डिलीट कमांड से आपको वेयर कंडीशन देना होता है. अगर आप वेयर कंडीशन देके नहीं करोगे तो जो पूरे रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएंगे. ओके. सो दिस इज नथिंग बट द डिलीट कमांड. सो वी स्टार्ट वी आल्सो सीन सम ऑफ द sorry alter command. In alter command we saw adding removing column. So let's start again with them. Adding column, we have seen here also example alter table student or table name, then add this new column name and its precision and data type. Okay, first connected. तो अल्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऐड रिमूव प्रेसिजन इंक्रीज डिक्रीज. उसके बाद क्या है, कॉलम अनयूज्ड कर सकते हैं, कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं, कॉलम रीनेम कर सकते हैं. हम वन बाय वन फिर से देखेंगे आज. हमने ये दो ऐड और ड्रॉप के देखे थे. ओके. सो सपोज अल्टर टेबल नेम ऐड कॉलम एंड इट्स डेटा टाइप. ओके. So again we have to add one column like mobile number. Okay. Okay. Anyone tell me how to write this command? Yesterday we have already seen. We had required to add mobile number column. So how to write that adding add command? See here, alter table name, add column and its data type. So please tell anyone from you. Hello. Yes. Uh, Alter table Okay. Next. student Hmm. add Add mobile number mobile number. data type number Okay. and in bracket precision, that is 10, closing bracket and semicolon. Okay. So table altered. So if we see that table again, then mobile number column gets added. So in same way,
Any one of you tell for a drop removing column command. Okay, removing column. This also seen yesterday. Alter table, table name, then drop column and data type. Who is tell instead of Nikita? Who is tell? Shankar, you tell me. Hello, are you able to hear me, Shankar? I think voice is not reachable to Shankar. Priyanka, can you able to tell? Hello, Priyanka. If you are not able to tell, then tell me no. मेरे को ऐसा लगता है कि वॉइस नहीं पूछता. बाकी लोगों को आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So why these people are not telling? ओके चलो मैं बोल देता हूँ. अल्टर टेबल, देन टेबल नेम स्टूडेंट, ड्रॉप कॉलम and column name. Very simple command. Mobile underscore number. Okay. टेबल अल्टर तो हमारे कॉलम ड्रॉप हो गया. ओके. If your people are not talking, then how do you understand it? All that things. This means you are not practicing at home. If you are not practice, then you will not understand anything. So please practice after the class. Whenever you got time, then do practice. Because all these syntaxes and all, it's not that much easy to remember everything. So practice makes you perfect. So please practice every day. At least 1 to 2 hours you can practice every day. So whenever you practice, then you got some errors, some, so your understanding level is also got at that level. तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको हर रोज. और इफ आई एम आस्किंग टू समवन, देन डोंट हेजिटेट, प्लीज टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम. इफ यू आर नॉट नोन, देन इट्स ओके, फाइन. You can also tell me that I am not able to tell at that time. Okay. So next we have to move increasing or decreasing the precision of column. So this will also saw yesterday. So alter table, then table name, modify column and its data type. So we'll take quick. We'll see first precision. What's there? Desk student. Okay. So marks their precision is 9. So we have to modify alter table. Then टेबल नेम क्या है हमारा? स्टूडेंट. ओके. प्रिसीजन के लिए. ओके. टेबल नेम स्टूडेंट, देन मॉडिफाई. This keyword you need to remember, modify here.
Then column name name marks, its data type number, and mm, precision, like we have to put 10. For decreasing the precision, yesterday I tell you have to column must be empty. Okay, तो हम अगर देखेंगे भाई तो इधर प्रेसिजन भी उसका हो गया. ओके. Hello. यस. Sir, your video and audio synchronization is not properly, sir. ओके. आई विल डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट इट अगेन. ओके. नाउ इट्स गुड और नॉट. Okay, sir. Good. Okay. ओके. So for we have shown precision, so we cannot decrease the precision. If you want to decrease the precision, then column must be empty. So in here we increase the precision. Then next of that, the precision we have here also note is there, to decrease precision column should be empty. You read carefully this PDF. So next is making column unused. So alter table name, then set unused column and column name. Okay. So you have to mention the keyword like set unused column and then उस कॉलम का नाम. तो हम क्या करेंगे, मेरे पास सपोज हो हम करते हैं पहले. तो हम क्या करेंगे, वो कॉलम अनयूज्ड बनाने के, सपोज मार्क्स का कॉलम हम अनयूज्ड बनाते हैं. तो कोई बता सकता है हाउ टू राइट दैट कमांड फॉर दैट कॉलम. हियर यू कैन सी आल्सो. ओके. मेकिंग कॉलम अनयूज्ड, अल्टर टेबल नेम, देन सेट अनयूज्ड कॉलम एंड कॉलम नेम. ओके. टेल एनीवन. Shankar, you are able to hear me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So please tell how to write that command for making column unused. Alter table. Okay. Alter table. Next. Student. Okay. Hello. हाँ, yes. Next. Unused column. यार ये देखो इधर क्या लिखा है, सेट अनयूज्ड कॉलम. तो सेट कीवर्ड आल्सो. Set unused column. ओके. सेट अनयूज्ड कॉलम हमको अभी मार्क्स का करना है. Mark. ओके. Yes. देन सेमीकोलन. अभी यस. इधर उसका डेटा टाइप semicolon एंड end. नहीं देने का. Enter. ओके. तो ये टेबल अल्टर हो गया. अभी अगर हम देखेंगे तो ये कॉलम दिखेगा नहीं. जो कॉलम हम अनयूज करते हैं ये वो आप माइक बंद कर सकते हो. ये जो कॉलम हम इधर देख रहे हैं
तो अभी मार्क्स का कॉलम इधर हमको दिखेगा नहीं, हमने वो अनयूज्ड सेट किया है, लेकिन वो कॉलम इधर है, वो डायरेक्टली डिलीट नहीं हुआ है, वो अनयूज्ड है, लेकिन इधर दिखेगा नहीं। ओके, सो we can drop that column using, we have command dropping unused column. Okay, so this also simple command, I will do it. Alter table, तो हमने अभी मार्क्स का कॉलम अनयूज्ड क्या है उसको हम अभी ड्रॉप करेंगे। ओके, मतलब इधर से निकाल देंगे, इधर वो दिखता नहीं लेकिन बैकएंड में वो डेटाबेस में उधर सेव है, तो हम उसको अभी निकाल देंगे। हमारे पास अगर 2, 3, 4, 5 कितने भी अनयूज्ड कॉलम होंगे तो हम ये एक ही कमांड की मदद से वो पूरे अनयूज्ड कॉलम निकाल सकते हैं। ओके, मतलब ड्रॉप कर सकते हैं। अल्टर टेबल, देन आवर टेबल नेम स्टूडेंट, ड्रॉप अनयूज्ड कॉलम्स, मतलब ऑल कॉलम्स अभी जो अनयूज्ड है वो ड्रॉप हो जाएंगे। ओके, टेबल अल्टर्ड, तो इधर तब भी नहीं दिख रहा था, अब भी नहीं, लेकिन वो बैकएंड से ड्रॉप हो गया। ओके, अभी मार्क्स का कॉलम आपको नहीं दिखेगा। ओके, तो नेक्स्ट है अपने पास रीनेमिंग कॉलम। सो कॉलम का नेम रीनेम करने के लिए, ओके, सपोज, Hello? यस, I have a query, sir. या Sir, will you please tell me the difference between drop and unused command? drop and unused column. Okay, we have seen which drop The means. difference between drop and unused. Okay, okay. Difference between them. Up to now we haven't seen drop, na. ड्रॉप इज कमिंग नेक्स्ट, ड्रॉप आपको आगे आएगा। सो अनयूज्ड कॉलम एंड ड्रॉप मीन्स, या, सो ड्रॉप अनयूज, यानी परमानेंट डिलीट होता या 1 मिनट आई विल टेल यू। ये जो अनयूज्ड कॉलम हमने सेट किया है ना, इधर अगर हम रोल बैक करेंगे तो वो कॉलम वापस आ जाएगा, और इधर जब हम ड्रॉप कर रहे हैं तो वो परमानेंटली ड्रॉप हो जाएगा, रोल बैक करने के बाद वापस नहीं आएगा। समझ गए? Uh, नहीं सर, एक्चुअली कल मैंने जब अनयूज्ड कमांड यूज की थी और उसके बाद जब मैंने रोल बैक कमांड यूज की थी, तो आई हैवंट सीन दैट रिकॉर्ड येट सर। ओके, ओके, देन आपने गूगल किया नहीं। हाउ टू गेट बैक unused column? You cannot reuse a unused column. The only possible action on the column is to remove it from the table, but you can add a new column with the same name even without. Okay, so you cannot reuse unused column. So unused means वो हमारे कुछ काम का होता ही नहीं वापस। मतलब हमने अगर सपोज एक कॉलम अनयूज सेट कर दिया तो उसको वापस दोबारा यूज कर भी नहीं सकते, लेकिन उसी सेम नेम का कॉलम हम दोबारा ऐड कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम ड्रॉप कर सकते हैं, वो उधर से निकाल दे सकते हैं, नहीं भी किया तो भी चलेगा, उसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं, उस सेम नेम का कॉलम हम दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कॉलम वापस आएगा नहीं। अभी समझ में आ गया? आपको कुछ भी डाउट अगर, सॉरी वो नेटवर्क चला गया था। ओके, आवाज आ रही ना? यस सर। ओके, सो यार पहले कुछ भी डाउट अगर आए ना आपको तो पहले गूगल करके देख लो, उसमें इधर लिखा है यू कैनॉट रीयूज अनयूज्ड कॉलम।
ओके, मतलब वो कॉलम हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। एक बार अनयूज सेट कर दिया तो वो कॉलम फिर से हम किधर भी यूज़ कर नहीं सकते। ओनली उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं उसके बाद। ड्रॉप नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसमें एक कर सकते हैं, सिर्फ वही सेम नेम का कॉलम हम दोबारा से उसमें डाल सकते हैं, मतलब सेम नेम का कॉलम हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मतलब एक बार अनयूज सेट कर दिया वो दोबारा आएगा नहीं, रोल बैक करने के बाद भी नहीं आएगा, उसका कुछ यूज़ नहीं, मतलब वो ड्रॉप होने जैसे ही है, उसको ड्रॉप कर सकते हैं। सेम नेम का कॉलम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसका कुछ यूज बचता नहीं अनयूज करने के बाद। अभी समझ गए? हेलो? Okay. ओके। ओके, तो ये हो गया अनयूज्ड कॉलम। अगर रीनेमिंग कॉलम करना होगा हमको, सपोज हमको ये कॉलम है रोल नंबर, तो इसको हमको रीनेम करना है, सपोज एस रोल नंबर। ओके, Sir, you haven't shared your screen. अरे ओके, सपोज ये रोल नंबर का कॉलम है, हमको अभी रीनेम करना है उसको, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, एस रोल नंबर, अदर कुछ भी दे सकते हो। तो वो कैसे करेंगे हम इधर देखते हो। तो उसके लिए भी सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स क्या है, अल्टर टेबल, ओके, देन टेबल नेम, रीनेम कॉलम, देन ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। इधर मीन्स इधर क्या है, अल्टर टेबल, अपने टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। इधर रीनेम कॉलम वैसा ही कीवर्ड डालने का, रीनेम कॉलम, देन ओल्ड कॉलम नेम हमारा क्या है इधर, रोल नंबर, और न्यू कॉलम नेम क्या देने का है, एस रोल नंबर। ओके, तो ऐसे ये कमांड देने का। तो उसमें कोई बता सकता है कैसे लिखेंगे? ज्ञानेश्वर, हेलो ज्ञानेश्वर। ओके, समवन एल्स? बोलो, तुम लोग बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? ओके, चलो मैं करके दिखाता हूँ। अल्टर टेबल, देन हमारा टेबल नेम है स्टूडेंट, उसके बाद रीनेम कॉलम, ओके, रीनेम कॉलम क्या था, रोल नंबर, ओल्ड कॉलम नेम, ओके, टू न्यू कॉलम नेम, मतलब एस रोल नंबर। ओके, टेबल अल्टर्ड। तो अगर हम देखेंगे अभी ये टेबल, तो उसका नाम चेंज हो गया कॉलम का। ओके, सिंपल कमांड है, सिर्फ हम कौन से भी कॉलम का इधर से नेम रीनेम कर सकते हो। ओके, ये कॉलम नेम रीनेम करने के लिए ये कमांड है, और टेबल नेम के लिए हमारे पास अलग है, वो आगे देखेंगे। तो ये कौन से भी कॉलम का नेम आप ये कमांड यूज करके, सिंटैक्स याद रखने पड़ेंगे आपको सिर्फ। अगर ये सिंटैक्स आपको पता होगे तो आप कौन से भी टेबल का कुछ भी लिख सकते हो। बाकी ये एग्जाम्पल वगैरह ये रेफरेंस के लिए पढ़ो, लेकिन आप ये एग्जाम्पल खुद से बना सकते हो, मतलब टेबल के नेम के हिसाब से वो चेंज होंगे, कॉलम के नेम के हिसाब से इधर नेम अलग हो जाएंगे, लेकिन ये जो सिंटेक्स है वो सेम रहेगा। इसको याद रखोगे तो आपको किधर भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट है अपने पास ट्रंकेट ऑप्शन।
So this truncate is used to, this can be used to delete the entire table data permanently. Okay. What is this means entire table data permanently? आपका जो पूरा टेबल में जो डेटा है रहता है वो डिलीट हो जाता है. ओके. जो इंसर्ट किया हुआ डेटा रहता है आपका वो इसमें पूरा डिलीट हो जाता है. सिर्फ टेबल का जो डेफिनेशन रहता है वो डिलीट नहीं होता. ओके. ये DDL का कमांड है. जो टेबल का डेफिनेशन है वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ इंसर्ट किया हुआ जो डेटा है हमारा ये इधर देखो, ये टेबल है, ये टेबल का डेफिनेशन है. ओके. जब आप ट्रंकेट कमांड यूज करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा. ओके. और जो इंसर्ट किया हुआ पूरा जो डेटा है वो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा. इसमें कुछ हम कंडीशन वगैरह नहीं देते. तो ये पूरा टेबल का डेटा डिलीट करने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं. अभी हमारे स्टूडेंट टेबल में क्या है, एस रोल नंबर नेम. ओके. तो ये कमांड है. ये टेबल में डेटा है तो ट्रंकेट करके देखते हैं उसको. ओके. क्या होता है ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट. तो क्या हो गया, टेबल ट्रंकेटेड. ओके. तो अगर हम अभी टेबल देखेंगे तो इधर कुछ दिखेगा, नो रो सिलेक्टेड बोल रहा है, लेकिन उसका जो डेफिनेशन है वो हम देख सकते हैं डैश की मदद से. ओके. तो डेफिनेशन डिलीट हुआ क्या, ये नहीं हुआ. सिर्फ उसमें जो हमने डेटा इंसर्ट किया था स्टूडेंट टेबल में, ये डेटा सिर्फ यही डिलीट हो गया. ओके. ये डेटा डिलीट हो गया, उसका डेफिनेशन डिलीट नहीं होता. सिंपल यूज है ट्रंकेट का, सिर्फ उतना ही यूज है. इधर कौन सा भी आपका टेबल नेम चेंज होगा सिर्फ, तो ये इंसर्ट किया हुआ डेटा ही डिलीट होगा इसमें. आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रंकेट, व्हाट वी डू यूजिंग ट्रंकेट. देन एक डिफरेंस भी है वो मैं बताता हूँ आगे. देन ड्रॉप, दिस विल बी यूज टू ड्रॉप द डेटाबेस ऑब्जेक्ट. ओके. ड्रॉप में क्या होता है, इसमें टेबल का पूरा डेटा डिलीट हो जाता है. ओके. ड्रॉप टेबल स्टूडेंट मीन्स ये जो रहता है ना, ये ऑब्जेक्ट भी रहता है, ये पूरा डिलीट होता है. हम एक बार करके ड्रॉप टेबल स्टूडेंट. टेबल ड्रॉप. अभी आप करने जाओगे ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये बताएगा ऐसा कुछ टेबल है ही नहीं. टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट. ओके. सो दिस मीन्स अगर ये टेबल में, अभी स्टूडेंट टेबल में कुछ इंसर्ट किया हुआ डेटा भी होता, सपोज ये टेबल में ऐसा डेटा होता, हम ये कमांड है ना, एस रोल नंबर और नेम, ये दो कॉलम थे हमारे. अगर ये डेटा भी होता इधर तो ड्रॉप की कमांड की मदद से उसका वो डेफिनेशन और डेटा दोनों डिलीट हो जाते. ट्रंकेट में क्या होता है, सिर्फ सिर्फ ये इंसर्टेड डेटा डिलीट होता है, डेफिनेशन वैसे रहता है. और ड्रॉप में पूरा टेबल ड्रॉप हो जाता है, कुछ भी रहता है नहीं. और डिलीट एक हमने पहले देखा है, डिलीट में स्पेसिफिक रो डिलीट हो जाता है. तो हमको इंटरव्यू में बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके. तो ये सब नाम निकाल देते हैं. यार इधर. ओके. हाँ. तो पहले हमारा ये क्या है, हमने जो कमांड देते, ठीक है, हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं. डिलीट, देन ट्रंकेट, ड्रॉप. चलो, कोई बता सकता है डिफरेंस क्या है इन तीनों में, मैंने अभी बताया आपको. बोलो.
हेलो सर। यस। सर डिलीट कमांड में हम्म, हम कंडीशन देके डाटा डिलीट करेंगे, वेयर कंडीशन यूज करते हैं, करेक्ट। वेयर कंडीशन देके डाटा डिलीट कर सकते हैं, हम्म। और ट्रंकेट में पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा डेटा डिलीट यूजिंग वेयर यूजिंग वेयर कंडीशन। कंडीशन। ओके, ट्रंकेट में क्या होगा? ट्रंकेट में वोल डाटा गेट डिलीट होगा। नहीं, ट्रंकेट में क्या होता है? होल पूरा नहीं डेटा डिलीट होता। नहीं नहीं, अपना डेफिनेशन ऐसे रहेगा, ओके, ओनली इंसर्टेड ओनली इंसर्टेड डेटा। डेटा गॉट्स डिलीटेड। ओके, और ड्रॉप में? ड्रॉप में पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। ओके, परमानेंटली डिलीट होल टेबल। सो इसमें और कोई फर्क बता सकते हो, डिफरेंस डिलीट का? और क्या कर सकते हैं हम? मतलब वो जो हमारे जो लैंग्वेजेस है, DDL, DML, DRL, उसमें ये कौन सा इसमें आता है डिलीट? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं? एक बार आपने अगर डिलीट कमांड यूज किया, तो वो डिलीट के बाद आप जो रो डिलीट करते हो, ओके, तो वापिस आप ला सकते हो क्या? दिस इज DML, इंसर्ट अपडेट डिलीट। ओके, मीन्स इसमें आप रोल बैक कर सकते हो क्या? तो डिलीट करने के बाद रोल बैक कर सकते हैं, हम्म बट अगर कमिट कमांड यूज किया तो फिर नहीं कर सकते रोल बैक। ओके, मीन्स हियर रोल बैक पॉसिबल। ओके, या ये इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेल द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट और ड्रॉप, और ट्रंकेट ड्रॉप, डिलीट ड्रॉप, ये याद ही करके रखने का। ओके, रोल बैक पॉसिबल। ओके, ये ट्रंकेट कौन सा लैंग्वेज का कमांड है? DDL, DML कौन सा है? DDL। ओके, सो DDL में क्या करते हैं हम? रोल बैक करते, कमिट करते। हम्म एक बार हमने ट्रंकेट कमांड यूज किया, वापस वो डेटा आएगा क्या? एक बार डेटा डिलीट हो गया, इंसर्टेड डेटा, तो वापस वो हमको मिल सकता है क्या? टेल एनीवन। सिंपल है। DDL कमांड में क्या होता है? ऑटो कमिटेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑटो कमिटेड का क्या मतलब है? Yes, we can roll back it. नो, यू कैनॉट रोल बैक इट। मतलब पहले अगर हमने कुछ भी DDL कमांड में कुछ भी कमांड यूज किया, ये DDL कमांड है। ओके, ये DDL है, क्रिएट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेटरी नेम। ओके, ये कौन सा भी कमांड हमने यूज किया, ये क्या होता है? ऑटो कमिटेड। और ऑटो कमिटेड का क्या मतलब है? जैसे हम कमांड देके एंटर करेंगे, वो कमिट हो जाएगा। तो वापिस तुम रोल बैक करके क्या करोगे? अगर तुमने ये ट्रंकेट कमांड यूज कर दिया, ओके, तो इंसर्टेड डेटा डिलीट हो गया, तो ऑटो कमिटेड मतलब वो ऑटो कमिट भी हो गया। तो कमिट हो गया तो वो रोल बैक नहीं होगा ना। एक्सेल की मदद से समझो, अगर आपने इधर कुछ ये टाइप कर दिया, ओके,
या आपने सेव कर दिया, ओके। तो इधर हम अनडू कर सकते हैं उसको, लेकिन डेटाबेस में वैसा हो नहीं सकता। एक बार डेटा सेव होने के बाद वो रोल बैक नहीं होता। वो किधर तक रोल बैक होता है, जिधर जिधर तक आपने कमिट किया है उधर तक ही रोल बैक होता है, कमिट के ऊपर रोल बैक नहीं होगा। समझ में आया क्या कि नहीं समझे अभी? हेलो, यस सर। समझ निकिता, हाँ। समझ में आ गया? सर हाँ, यस यस ओके। सो इधर रोल बैक नॉट पॉसिबल, ओके। मीन्स ये डेटा एक बार ट्रंकेट करने के बाद वापस नहीं आ सकता। और ड्रॉप में क्या होता है, अभी ये कौन सा है कमांड, लैंग्वेज कौन सा? DDL ओके, तो इसमें क्या होगा? rollback is not possible. ओके, करेक्ट। रोल बैक नॉट पॉसिबल, ओके। हाँ, और डिलीट में क्या कर सकते हैं हम? डेटा डिलीट यूजिंग वेयर कंडीशन, ये करेक्ट है। हाँ, रोल बैक नॉट पॉसिबल, इधर रोल बैक नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ओके। और डिलीट में हम स्पेसिफिक रो डिलीट कर सकते हैं, करेक्ट। इधर कौन सा भी रो हम ऐसा सिलेक्ट करके वेयर कंडीशन देके डिलीट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेसिफिक रो। कोई भी डिलीट का और ये डिफरेंस पूछेगा तो इसमें उसको बोलने का पहले ये तीनों कौन से लैंग्वेज है वो बता देने का, डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप। तो डिलीट DML लैंग्वेज, ट्रंकेट DDL में आता है और ड्रॉप DDL में आता है। तो उनको बता देने का। डिलीट में हम वेयर कंडीशन यूज़ करते हैं और एक स्पेसिफिक रो हम डिलीट में डिलीट कर सकते हैं। तो और ये ट्रंकेट और ड्रॉप में रोल बैक पॉसिबल नहीं है और हम कोई भी स्पेसिफिक रो डिलीट नहीं कर सकते, ओके। वी कैनॉट डिलीट स्पेसिफिक रो, ओके। सेम ईयर ड्रॉप में भी हम कोई भी स्पेसिफिक रो डिलीट नहीं कर सकते, ओके। और इधर रोल बैक नहीं, इधर रोल बैक नहीं, इधर रोल बैक हो सकता है, वापस डेटा हम वो ला सकते हैं। सिर्फ उसको एक कंडीशन क्या है, कमिट नहीं करना चाहिए। कमिट करने से पहले रोल बैक हो सकता है, ओके। और इधर ट्रंकेट में ये इधर कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, ट्रंकेट और ड्रॉप। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं ट्रंकेट और ड्रॉप में डिफरेंस। जैसे इधर ड्रॉप में पूरा टेबल डिलीट होता है, परमानेंटली डिलीट, ओके, होल टेबल। और इधर सिर्फ इंसर्टेड डेटा डिलीट होता है। तो ये आप लोग याद रखो, ओके। ये भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, नॉट एन इशू। कोई डाउट है डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप में अभी? ओके, चलो नेक्स्ट। यूजिंग अभी रीनेम एक कमांड इधर है, ओके। तो रीनेम में क्या होता है, दिस विल बी यूज टू रीनेम द डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ओके। इसमें हम टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। हमारे टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, ओके। तो हम अभी स्टूडेंट टेबल हमने इधर ड्रॉप कर दिया, ओके। तो उससे पहले मैंने एक कमांड यूज करके एक नया टेबल बना लिया था, वो कमांड आप लोग आगे सीखोगे। तो मैं वो टेबल ओपन करता हूँ, ओके। एम्प्लॉय का टेबल मैंने वो बना लिया था, आप हमारा वैसा, क्योंकि अभी स्टूडेंट टेबल आपको दिखेगा नहीं, हमने वो ड्रॉप कर दिया, ओके। इफ यू हैव सीन, सिलेक्ट
टेबल नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इसलिए मैंने ये बना लिया था ड्रॉप यूज करने से पहले। ओके, तो एम्प्लॉय में क्या है, हमको टेबल का नेम चेंज करना है। तो अभी हमारा टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय। ओके, तो एम्प्लॉय से हम क्या करेंगे, सपोज कुछ भी नाम दे देंगे, एस एम्प्लॉय, और आप कौन सा भी नेम ले लो। ओके, इधर क्या है, हमारा टेबल का नेम स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट टू स्टड, एम्प्लॉय टू ईएमपी, रीनेम ओल्ड नेम टू न्यू नेम। सिंपल कमांड, ये रीनेम और इधर एक रीनेम है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। ये कॉलम नेम चेंज करने के लिए रीनेमिंग कॉलम होता है अल्टर की मदद से। ओके, और ये इधर रीनेम मतलब ये टेबल का नेम चेंज करने के लिए पूरा इधर अल्टर का यूज नहीं है, ओनली रीनेम वर्ड वी हैव टू यूज। ओके, so let's see, रीनेम। होल टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय टू ईएमपी। ओके, टेबल रीनेम्ड। तो अभी हम एम्प्लॉय देखेंगे तो ये क्या बोलेगा, कोई बता सकते हैं हम? अब अभी अगर एम्प्लॉय टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे तो क्या बताएगा, दिखेगा क्या वो टेबल? हेलो, बोलो, इंटरेक्शन, कुछ डरो मत, फ्रैंकली स्पीकिंग करो। क्या होगा, अभी हम एम्प्लॉय का टेबल फिर से देखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? Not exist. ओके, करेक्ट। नहीं दिखेगा वो। अभी क्या करना पड़ेगा हमको, इधर नया जो टेबल का नेम हमने रीनेम किया है वो देना पड़ेगा। ओके, ईएमपी। तो सेम रिकॉर्ड सेम सब, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ टेबल का नेम बदल गया। ओके, so this simple command to rename the table। देन DRL, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, उसमें क्या है, सिर्फ एक ही कमांड है, सिलेक्ट। here if you see DRL, only select is there, and ये हम पहले से देखते ही आ रहे हैं। ओके, सिलेक्ट हम इधर देखते आ रहे हैं। अब फॉर एवरी टेबल you have to use क्या, select star from student, select star from employee, this is nothing but the DRL language and select command। okay, select star from table name, ये तो हम अभी कर ही रहे, select star from table name। okay, ये हो गया एक। और आप वो टेबल में से स्पेसिफिक कॉलम भी देख सकते हो। अब ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट में पूरा उसका रिकॉर्ड आ गया। ओके, अभी आपको उसका सिर्फ नंबर और नेम ही चाहिए। हमारा जो ये एम्प्लॉय टेबल है उसमें आपको सिर्फ रोल नंबर और नेम ही देखना है, मार्क्स नहीं देखना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास इधर एक कमांड है, सिलेक्ट। ये स्टार का मतलब है होल डेटा, मतलब पूरा डेटा। स्टार मतलब पूरे रिकॉर्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो। अभी स्टार की जगह क्या करने का है, आपको जो चाहिए वो कॉलम के नाम डाल देने की। ओके, तो क्या है, सिलेक्ट नंबर, नेम, देन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। अभी ये इन्होंने तीनों कॉलम के नाम डाल दिए, फिर से वही रिकॉर्ड सेम आ गया। ओके, इधर अगर तीन ही कॉलम है तो आप स्टार यूज कर सकते हो। तीन मतलब आपको अगर पूरा टेबल का रिकॉर्ड चाहिए तो स्टार यूज कर सकते हो, और स्पेसिफिक कुछ कॉलम चाहिए दो तीन तो ये यूज कर सकते हो, सिलेक्ट कॉलम के नाम देन फ्रॉम टेबल नेम। ओके, इधर देखो, सिलेक्ट नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, नंबर, नेम। ओके, हम करके देखेंगे, सिलेक्ट रोल नंबर, देन कॉमा नेम फ्रॉम एमपी। आ गया। ओनली टू कॉलम हियर विल सी रोल नंबर और नेम, मार्क्स कॉलम इज नॉट देयर। अगर आप इधर मार्क्स भी ऐड करोगे तो वो दिखेगा, और स्टार भी ऐड करोगे तो भी दिखेगा। ओके, आ गया। हम जितने कॉलम के नाम
सिलेक्ट कमांड में दोगे तो वो कॉलम आपको उसके नीचे शो होंगे। ओके, तो दिस इज सिंपल सिलेक्ट कमांड। इधर तक कोई डाउट है आप लोगों को? ओके, so we'll move forward. Conditional selection and operators. Okay, तो कंडीशनल सिलेक्शन एंड ऑपरेटर्स में क्या करना होगा, उसमें दो टाइप है। वी हैव टू क्लॉजेस इन दिस। ओके, वेयर एंड ऑर्डर बाय। सो वेयर एंड ऑर्डर बाय में हम क्या कर सकते हैं, आज हम लोग ये थोड़ा ओवरव्यू में दे देता हूँ, ये कल देखेंगे हम। आप भी अगर आपको टाइम मिलेगा, इधर तक प्रैक्टिस आपका हो गया तो इस ओवरलुक कर लेने का ये सिर्फ आज, तो ये कल हम डिटेल में देखेंगे। तो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ क्या है। वी हैव टू क्लॉजेस इन दिस, वेयर एंड ऑर्डर बाय। आप दो क्लॉज अलग अलग है, वेयर का अलग है, ऑर्डर बाय का अलग है। ये हम सिलेक्ट कमांड के बाद एक वेयर यूज कर सकते हैं और दूसरा एक्सक्यूज मी। तो हमारे पास ये दो क्लॉज है, एक वेयर और ऑर्डर बाय। वेयर का यूज करके हमारे पास सिंटेक्स कैसा होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ओके, देन टेबल का नाम, हमारे टेबल के नाम डालने के बाद वेयर कंडीशन देना होता है। तो उसमें वेयर कंडीशन देने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। तो अलग अलग ऑपरेटर की मदद से हम ये वेयर कंडीशन दे सकते हैं। ओके, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये तो हमारा सेम ही रहेगा इन एवरी ऑपरेटर, सिर्फ ये वेयर कंडीशन बदलते जाएगा। ओके, तो पहले हम ये वेयर का क्लॉज देखेंगे, उसके बाद ऑर्डर का है। वेयर का थोड़ा बिग है, ऑर्डर का छोटा है। ओके, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम देन वेयर कंडीशन। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर्स है। पहले भी आप लोगों ने जो मैथमेटिक्स में ये ऑपरेटर्स पढ़े, अगर आप कोई कौन से भी ब्रांच से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये ऑपरेटर सब लोगों ने पढ़े। ओके, मैथ में। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पहला है, दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, सो अरिथमेटिक में क्या क्या आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके, स्टार फॉरवर्ड स्लैश, this all you know, plus minus and that multiplication and division. Okay, and then comparison operators। तो कंपैरिजन कौन से है, इक्वल टू, एक्सक्लामेटरी इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ओके, देन अदर है उसमें बिटवीन, नॉट बिटवीन, इन, नॉट इन, नल, नॉट नल और लाइक। एंड देन थर्ड है हमारा ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर, उसमें क्या है, एंड, और, एंड नॉट। ओके, एंड और नॉट, ये भी हमने पूरे देखे। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं। तो यूजिंग ये पहला कौन सा है कंपैरिजन ऑपरेटर में, इक्वल टू, एक्सक्लामेटरी इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब है। तो इसमें वन बाय वन उन्होंने करके दिखाया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नंबर इक्वल टू 2। अभी ये तो हमने यूज़ करके देखा वेयर कंडीशन का। ओके, अगर हमको सिर्फ ये रोल नंबर 2 का 3 का ही रिकॉर्ड चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हमको सिर्फ यही एक रिकॉर्ड चाहिए। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 3, तो सिर्फ हमको यही एक रिकॉर्ड दिखेगा। ओके, ऐसा रहता है। देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नंबर लेस देन 2, मतलब दो से जो रोल नंबर है लेस देन 2 से जो कम हो गए वही दिखेंगे हमको। ओके, लेस देन मीन्स स्मॉल नंबर। ओके,
स्मॉलर देन 2, इधर देखो 1 1 आगे, उतने ही दिखेंगे। वेन नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से जो बड़े वही दिखेंगे। ओके। वेन नंबर लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 और उससे नीचे वाले। ओके, ये होगी। ग्रेटर देन 2 मतलब 2 और उससे बड़े, ये होगी। ओके। वेयर नंबर एक्सक्लामेटरी इक्वल टू 2, एक्सक्लामेटरी इक्वल टू मतलब 2 छोड़ के बाकी सब। ओके, इधर देखिए, दो दो ही नहीं है, बाकी सब नंबर। लेस देन ग्रेटर देन 2 मतलब 2 छोड़ के बाकी 2, ये सेम है। एक्सक्लामेटरी इक्वल टू 2 और लेस देन ग्रेटर देन 2। ओके। एंड की यूज करके क्या कर सकते हैं, दिस विल गिव द आउटपुट व्हेन ऑल कंडीशन बिकम ट्रू। ओके, आप दो कंडीशन दे सकते हो वेयर में। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, पहला कंडीशन कुछ वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2 एंड मार्क्स इक्वल टू 300। तो आपने ये दो कंडीशन दिया, तो अगर आप एंड यूज कर रहे हो तो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। मतलब आप फॉल्स कंडीशन नहीं दे सकते। ठीक है, समझ में आया था देखो, नहीं तो मैं कल आपको बताऊंगा ये। तो दोनों ट्रू होना चाहिए कंडीशन, तभी ये सेटिस्फाई होगा। वेयर नंबर 2 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 200, इधर देखो नंबर 2 है और मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 200 से ज़्यादा है। अगर इधर किसी के मार्क्स 200 से 200 या 200 से ज़्यादा नहीं होते तो ये वेयर नंबर इक्वल टू 2 का भी रिकॉर्ड नहीं दिखाता, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। मतलब अपनी टेबल में वैसे रिकॉर्ड होने चाहिए, सिंपल। ओके। और को क्या है, सेम एंड जैसा यूज करने का, लेकिन और में दोनों में से कौन सा भी एक कंडीशन भी अगर ओके है तो वो रिकॉर्ड दिखाए। इधर क्या है, वेयर नंबर इक्वल टू 2 और मार्क्स ग्रेटर देन 200, और इधर मार्क्स है तो ये दिखाया ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 200। तो ये इधर 300 भी दिखाया उसने, तो इधर नहीं दिखाया था। ओके, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 200। सो हमको इधर क्या करने का, और में वेयर नंबर इक्वल टू 2। हाँ, तो दो नंबर वाले मार्क्स ग्रेटर देन 200 वाले, और उससे दो नंबर में अगर कुछ कम भी होंगे तो भी वो दिखाएगा, हम एक कल देख लेंगे। और बिटवीन का क्या होता है, दो वैल्यू के बीच में वो बिटवीन वर्ड डालते। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम बिटवीन इट्स लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड मीन्स मार्क्स बिटवीन 200 एंड 400, 200 और 400 के बीच में जो मार्क्स होंगे वो इधर दिखाएगा। ओके, एंड नॉट बिटवीन मीन्स इधर सिर्फ नॉट लगता है मार्क्स के पहले, कॉलम नेम के पहले, इधर नॉट बिटवीन 200 एंड 400। एंड इनका क्या है, नंबर इन 1 2 3। ओके, डोंट बॉदर, कल देखेंगे, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा बड़ा है। ये इधर तक वेयर है। ओके, उसके बाद ऑर्डर बाय। तो इधर तक समझ में आया आप सबको? कुछ डाउट है? नो सर। ओके, तो विल स्टॉप हियर। नहीं क्या बोलो, डाउट है कुछ? नहीं ओके, so we'll stop here, we'll continue tomorrow. Thanks all of you for joining today.